सबसे ज़रूरी परमेश्वर के राज्य में जब आप उस परमेश्वर के साथ चलते हैं, एक सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो है जो इमेज या जो छवि परमेश्वर की आपके पास है। The foremost important thing in the kingdom when you walk with the Lord is the image of God that is in you, that is with you. Amen. क्योंकि कई लोगों को लगता है कि मैं कुछ भी मानूं परमेश्वर के बारे में, मेरे जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है। Because many people think no matter what I believe about God, it's not going to impact my life, but it is not so. जो आप परमेश्वर के बारे में मानते हो वो बहुत जरूरी है। What you believe about God is very significant, very important. और आपके जीवन में जो भी फल हैं वो उससे निर्भर करते हैं। And whatever fruits you will have in your life will depend on it. यद्यपि परमेश्वर के पास अनंत सामर्थ्य है, Even though God has limitless power, उसका कोई माप नहीं। there is no measure of it. परमेश्वर का वचन कहता है स्वर्गों के स्वर्ग भी उस परमेश्वर उसमें नहीं समा सकता, परमेश्वर स्वर्गों के स्वर्ग में भी नहीं समा सकता। The word of God says even heavens of heavens cannot contain him. और परमेश्वर का वचन कहता है मसीह के लिए that in him dwells the fullness of Godhead bodily. And for Jesus, his word says कि उसकी देह में परमेश्वर की संपूर्णता वास करती है। ठीक है, आप सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? वचन कह रहा है The word is ये saying, पूरा जो ब्रह्मांड है, जो सारे नक्षत्र सब कुछ है, इस सब में भी परमेश्वर की भरपूरी नहीं समा सकती। all of cosmos, all the planets, even all of these things cannot contain the fullness of God. वो इतना महान है He is so mighty that even this entire universe it cannot contain the fullness of God. कि पूरी सृष्टि परमेश्वर की संपूर्णता को नहीं समा सकती। क्योंकि उसका वचन कहता है कि ये पूरी सृष्टि जो है वो परमेश्वर की हथेली में है। Because the word says that the entire creation, the entire universe is in the palm of his hands. हाँ? तो अगर आपके हथेली में आप घुस सकते हो? पूरा नहीं जा सकते। Can you get inside your palm? No, you cannot. So इस पूरी सृष्टि, परमेश्वर इतना महान है, इतना बड़ा है कि ये पूरी सृष्टि में भी परमेश्वर की भरपूरी समा नहीं सकती। God is so great, so mighty that the entire creation cannot contain him. मगर मसीह में बाइबल कहती है परमेश्वर की संपूर्णता वास करती थी। But the Bible says in Christ dwelt the fullness of Godhead bodily. यानी जब मसीह पृथ्वी पे चल रहा था, जब यीशु पृथ्वी में चल रहा था, उसके अंदर वो महान परमेश्वर की पूरी संपूर्णता थी। So when Jesus was walking on the earth, in him dwelt the fullness of that mighty God. और फिर भी Even then, बाइबल कहती है The Bible जब says, वो अपने शहर गया तो बड़े बड़े काम ना कर सका। even then the Bible says when he went to his own town, he could not do many क्यों? mighty miracles. क्योंकि उसके शहर के लोगों ने कहा अरे ये यूसुफ बड़ाई का बेटा नहीं है। Because the people of his city, they said, isn't he the son of Joseph the carpenter? अरे इसके तो भाई बहनों सबको बचपन से जानते हैं। We know his brothers and sisters from ये बड़ा childhood. प्रचारक बन गया आज। Oh, he's trying to become a preacher nowadays. और सोचो And imagine, उस यीशु के अंदर परमेश्वर की संपूर्णता वास करती थी। जो परमेश्वर सब कुछ कर सकता है फिर भी उन लोगों के लिए ना कर सका क्योंकि उनकी छवि खराब थी। in the Jesus in whom dwelt the fullness of Godhead bodily, he could not do many mighty miracles for those people because they had a wrong image in them. इसीलिए बहुत जरूरी है कि आपकी छवि जो परमेश्वर की है वो रीति रिवाज की शिक्षाओं से नहीं मगर परमेश्वर के जीवित वचन से आए। Therefore, it is so important that the image of God in your heart should not come from teachings of tradition and religion, but from the Word of God. ओके बाइबल बताती है जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया। Bible says when God made Adam, he made him in his
own image and likeness. और आदम ने जब पाप किया And when Adam sinned, तो क्या हुआ? what happened? परमेश्वर की जो छवि थी वो खराब हो गई। The image of God was distorted. अब आदम सोच रहा है Now Adam is thinking, ये छोड़ेगा नहीं मुझे, "This God, he will not spare me. भागो इससे। Run from him." जैसे आज भी कितने मसीह हैं, As today many जब वो believers, कुछ गलती करते हैं, कुछ पाप में गिर जाते हैं, when they make any mistake, when they fall in sin, तो परमेश्वर से दूर भागते हैं। they run away from God. क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है परमेश्वर अब हमें क्या देगा? क्या देगा? दंड देगा, पनिशमेंट देगा। Why? Because they think now God will punish us. यही आदम भी सोच रहा है। This is what Adam was also thinking. सो पाप का रिएक्शन एडम में क्या था? एडम इज नाउ रनिंग अवे फ्रॉम गॉड। So what was the reaction of sin in Adam? आदम परमेश्वर से दूर भाग रहा था पाप के एंड कारण। व्हाट इज गॉड डूइंग? परमेश्वर क्या कर रहा है? गॉड इज रनिंग आफ्टर एडम। परमेश्वर आदम के पीछे पीछे भाग रहा है। जब आदम ने पाप भी कर दिया, परमेश्वर ने आदम को छोड़ा नहीं। मैं आज कई लोगों से बात कर रहा हूं, चाहे कुछ भी गलती करी है, आपका स्वर्गीय पिता आपको छोड़ने वाला नहीं है, यीशु के नाम में। Even when Adam had sinned, God did not leave him. And I'm talking to many people today, no matter what mistake you have made, your heavenly Father is not going to leave you. याद रखना, जब तक आखिरी सांस है ना, Remember, till your last breath, तब तक वो आपका पीछा करता रहेगा अपनी पूरी सामर्थ्य से। till you have the last breath in your lungs, he will keep on pursuing you with all of his might. आदम को लग रहा है ये मेरे पीछे मेरे को मारने के लिए भाग रहा है। Adam is thinking, God is running after me to kill me. अरे वो तो उसका नंगापन ढांपने के लिए भाग रहा था उसके No, पीछे। he was running after him to hide his nakedness. क्या मारा परमेश्वर ने जब आदम के पास गया? Did God beat Adam when he went to him? Did he kill him? उसका नंगापन ढांका। No, he covered his nakedness. आज भी वही करना चाह रहे हैं। Even today, he's trying to do आपकी the same शर्म thing. को, आपकी पराजय को, आपकी हर एक गलत बात को वो अपने लहू से ढांपना चाहता है। Your shame, your defeat, every wrong thing in your life, he's trying to cover it with his own blood. इसीलिए बहुत जरूरी है सुसमाचार को पहचानो। सुसमाचार क्या है? अच्छा करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा करोगे दंड मिलेगा। अरे तो हर धर्म सिखाता है। This is why it is so important you understand what the gospel really is. If you do good, you get good. You do bad, you get punishment. This is what every religion is teaching. यही तो सुसमाचार है कि जिस दंड के योग्य हम थे, परमेश्वर ने स्वयं वो दंड अपने ऊपर ले लिया। But this is what the gospel is, that the punishment that we deserved, God took that punishment upon himself. Amen? इसीलिए याद रखना So remember, कि आप उस परमेश्वर के विषय में क्या सोचते हो, वो बहुत 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 जरूरी है। what you think about God is very, very, very important. कितने मसीह लोग समय से पहले मर गए। मैं मार्टियर्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनकी नहीं बात कर रहा हूं जो शहीद हो गए, वो तो लिखा है, कुछ लोगों का नंबर है। मगर वो जो गलत शिक्षाओं की वजह से, गलत चीजों को बिलीव करके समय से पहले चले गए। So many people died before their time. I'm not talking about martyrs. There's a number for that. I'm not talking about that. But so many believers died before their time, believing wrong teachings in their life. जो नहीं मानते कि परमेश्वर हमें दीर्घायु से तृप्त करता है, और ये मानते हैं कि परमेश्वर ने कुछ को 10 साल, कुछ को 15 साल, कुछ को 30 साल, कुछ को 40 साल परमेश्वर ने ये नियुक्त किया है, वो समय से पहले चले जाते। Those who do not believe that God has given us a long life, but those who believe that some live 10, God has given some 10, some 20, some 40, they go before their time. खुद सोचो, अगर परमेश्वर ने किसी को बच्चे को रखा था 4 साल में चला जाएगा, किसी को रखा था 8 साल में चला जाएगा, 14 साल में, 15 में, 30 में, 22 में, आप हर रोज सुन रहे हो लोग मर रहे हैं आपके चारों ओर, तो फिर क्यों वो अपने वचन में कहता है मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा? If it was God who had kept, some would live 4, 8, 15, 20, whatever.
Why would God then say in His word that I will satisfy you with a long life? अगर परमेश्वर ने एक एज पहले से नियुक्त करी है और वो एज बदल नहीं सकती, तो क्यों बाइबल कहती है अपने माता पिता का आदर कर कि पृथ्वी में तेरे दिन लंबे हों? If God had kept a specific age, a specific number for a man to live, then why does the Bible say, honor your mother and father so that you may have longer life on the earth? यानी आदर अपने माता पिता का, अपने अगुओं का, आपका जीवन के दिन लंबे कर सकता है. So that means honoring your mother and father, honoring your elders, your spiritual leaders can extend your days of life. अगर आदर हमारे दिनों को लंबा कर सकता है, तो निरादर हमारे दिनों को काट सकता है. If honor can extend or elongate our life, dishonor can cut short our life. और आज आपको एक सीक्रेट बताता हूं मैं. And today I'll tell you a secret. लंबा जीने का, To live a long life, एक ब्लेस्ड लाइफ जीने का. to live a blessed life. Exodus 23, I think it's 23, 26. Nirgaman 23. उसमें लिखा है, You shall serve the Lord your God, and He will bless your bread and your water. And I will take sicknesses away from the midst of you. No one will suffer miscarriage or be barren in your land. I will fulfill the number of your days. तू अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा करेगा और मैं तेरे खाने और पानी पर आशीष दूंगा और तेरे बीच में से रोगों को दूर करूंगा. तुम्हारे बीच में कोई भी बांझ ना होगी और मैं तेरे जीवन के दिनों को पूरा करूंगा. ओके, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं. I'll ask क्या you a question. आप उस परमेश्वर की सेवा कर रहे हो? Are you serving the Lord your God? क्योंकि एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट कई लोगों के दिमाग में क्या है, अरे मैं प्रचार, मैं फुल टाइम में नहीं हूं. अरे जो भी कर रहे हो फुल टाइम सेवा में हो आप भी. Because there's a wrong conception in many people's mind. Oh, I'm not a preacher, I'm not a full-time servant of God. No, whatever you're doing, you're a full-time servant of God. हाँ, ये वचन आप सबके लिए है. This word is for all of you. अगर परमेश्वर की सेवा करोगे, If you will serve Him, आपके अन्न और पानी में आशीष है. if you will serve God, there is blessing on your food and वो water. आपके बीच में से सारी बीमारियों को निकाल देगा. He will remove sicknesses आपके from your midst. परिवार में कोई बांझ ना होगी. There will be no और barren in your house. परमेश्वर आपके दिनों को पूरा करेगा. And the Lord will fulfill the number of your days. अब सवाल ये आता है, उस परमेश्वर की सेवा कौन करता है? Now the question is, who serves God? बहुत आसान जवाब है. The answer is very उस easy. परमेश्वर की सेवा वो करता है जो उसकी सेवा करना चाहता है. Anyone who wants to serve God serves God. जो टाइटल का वेट करते हैं वो खुदा की सेवा कभी नहीं करते. Those who wait for a title, they never serve God. जो कहते हैं पास्टर पहले पूरे चर्च के सामने बोलो मैं इवेंजलिस्ट हूं, तब मैं जाके सुसमाचार प्रचार करूंगा, तो तू बैठ चुपचाप. Those who say, Pastor, first say before the entire church, I'm an evangelist, then I'll go preach the gospel. To them, sit down. टाइटल बाद में आता है, The title comes much later. दिल पहले जाहिर होता है. The heart is shown first. जो टाइटल के लिए सेवा करता है, प्रभु कहता है तू बैठ जा साइड में. Those who serve for the title, the Lord says, go sit. मैंने आपको क्या बोला था? टाइटल लोगो की तरह है. लोगो, कार का लोगो. जब पूरी कार बन जाती है, मर्सिडीज का लोगो आखिरी में लगता है, टाक, ये मर्सिडीज गाड़ी है. I told you the title is like the logo of a car. When the entire car is assembled, then at the end they put the logo on it. उस खुदा की सेवा करते रहो. मैं क्या सेवा करूं? जो कर सकते हो, जो तुम्हारा हाथ ढूंढ सकता है करने के लिए, पूरे हृदय से उस खुदा की सेवा करो. Keep on serving the Lord your God. How can I serve Him? Whatever your hand finds to serve Him with, do it. With all your heart, do it. उसका वचन कहता है, जो थोड़े में विश्वास योग्य है, वो बहुत में भी विश्वास योग्य होगा. His word says, he who is faithful in little will also be faithful in much. जब मैंने नया जन्म पाया, जब मैंने उद्धार को पाया, मुझे थोड़ा ना पता था कि आगे मैं सेवा करूंगा, पर एक चीज पता थी कि मतलब सेवा करनी है. फुल टाइम मिनिस्ट्री का कोई डिजायर नहीं है.
When I was born again, when I received salvation, I knew one thing, that I have to serve God all my life. I never पहली thought about full-time नौकरी, ministry. वहां पे मुझे पास्टर सामर्थ, पास्टर मोनिका, पास्टर देवश्री, ये तीनों उस ऑफिस में काम करते रहे। मैं जहां था, कैफेटेरिया में हो, बैठ के कॉलिंग कर रहा हूं, जहां हो मैं प्रचार कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि दिल की बहुतायत से मुंह बोलता है, बाइबल कहती है। जब खुदा का प्रेम दिल में भरा हुआ होगा तो मुंह से भी वही निकलेगा। The first office where I was, I met the senior leadership there, and every time, everywhere I was, I would be preaching the gospel, because when the love of God is filled in your heart, that's what will come out of your mouth. एक भी ऑफिस ऐसा नहीं था जहां खुदा ने मुझे भेजा जहां मैंने सुसमाचार प्रचार ना किया हो अपने दोस्तों को, अपने कलीग्स को। Not even one office was such where the Lord sent me and I did not preach the gospel to my friends, to my colleagues. आज कई मसीह लोग हैं, वो कहते हैं हमें मिशन ट्रिप में जाना है, मलेशिया, इंडोनेशिया। अबे पहले ऑफिस में तो बता किसी को यीशु के बारे में। मलेशिया, इंडोनेशिया भी जाना, पहले जहां हो वहां विश्वास योग्य रहो, वहां गवाह बनो यीशु का। बाइबल कहती है कि तुम मेरे गवाह होगे, पहले यरूशलेम में, फिर यहूदिया में, फिर सामरिया में, फिर देशों के कोने कोने में। Today many people, they say, oh, I want to go to a mission trip to Indonesia, Malaysia. No, wherever you are in your office, first preach the gospel there. The Bible says first in Jerusalem, then in Judea, then in Samaria, and then the ends of the earth. कई लोगों को देशों में जाना है यीशु का प्रचार करने के लिए, ऑफिस में किसी को नहीं पता वो मसीह में। Many people want to go to nations to preach the gospel on mission trips, but nobody in their office knows they're even a believer. मैं जहां जाता यीशु के बारे में बताने लगा। Wherever I would go, I would tell about कोई Jesus. एजेंडा थोड़ा था, मुझे पास्टर के पास थोड़ा जाना था कि पास्टर जी मैं इवेंजलिस्ट बनना चाहता हूँ, या मुझे कोई टाइटल दे दो, या मुझे कोई पोजीशन दे दो। नहीं भाई, I had no agenda or to go to the pastor and say, give me the title of evangelist. No. बाइबल कहती है कुछ को अपोस्टल, प्रॉफिट, पास्टर, टीचर, इवेंजलिस्ट बुलाया, मगर सबको गवाह बनने के लिए बुलाया, सबको। The Bible says some are called to be apostles, prophets, teachers, pastors, evangelists, but all are called to be his witnesses. और अगर गवाह गवाही ना दे तो क्या फायदा ऐसे गवाह का? बेकार गवाह है वो। And if the witness does not do witnessing, he is a useless witness. आमेन। आप जहां हो वो आपका मिशन फील्ड है। Wherever you are, that is your mission field. मत बोलो दूसरे देशों में भेज प्रभु, Don't say, Lord, send me to different nations. पहले मुझे टाइटल दो। First, give me a title. आप जानते हो, आप कभी किसी को नहीं बताते वो कौन है, लोग आपको बताते हैं वो कौन है अपने कामों के द्वारा। You know, you never tell someone who they are, but people tell you who they are by their works. आमेन। सो सेवा करो। अगर अंत तक चाहते हो जीवन, ब्लेस जीवन जिए, मैं आपको बता रहा हूं, जो लोग यहोवा की सेवा करते हैं वो धन्य हैं, धन्य। If you want to live a blessed life, serve God. I'm telling you, the people that serve God, they are blessed. They live a blessed life. जो यहोवा की सेवा करते हैं ना, उन्हें कभी पैसे की सेवा करनी नहीं पड़ेगी। Those who serve God will never have to serve money. जो यहोवा की सेवा करते हैं ना, उन्हें कभी डॉक्टरों की और हॉस्पिटलों के चक्करों में जाके नहीं पड़ना पड़ेगा। Those who serve God will never have to run around doctors and hospitals ever. जो यहोवा की सेवा करते हैं ना, उन्हें मंत्रियों के ऑफिस में सिफारिश लगाने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। Those who serve the Lord their God, they don't have to go to minister's office so they would give them a favor. आमेन। सो सेवा करो उसकी, So serve him. जो कर सकते हो उसकी। मैं क्या कर सकता हूँ? जो कर सकते हो वो करो। What can I do for him? Do whatever you can. असेवा मत करो। Don't do a disservice to him. असेवा पता क्या होता है? कई मसीह लोग कलीसिया में आते हैं, असेवा करते हैं, जो सेवा कर रहे हैं उन पे चिल्लाते हैं। Many believers, when they come to church, they do a disservice to the church. They shout at volunteers who are serving in the house. और उल्टा भी है, जो वॉलंटियर लोगों पे चिल्लाते हैं वो भी असेवा कर रहे हैं कलीसिया में। And the volunteers, even if any volunteers are shouting at people, they are doing disservice. मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये इस घर की वैल्यू नहीं है। इस घर में हर एक व्यक्ति आदर के योग्य है, क्योंकि आप परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हो। I'm telling you, this is not the value of this house. Every person in this house is honorable because you're made in God's image.
And I want to apologize on behalf of any volunteer who misbehaved with you. और मैं किसी भी वॉलंटियर की तरफ से आपसे माफी मांगना चाहता हूँ जिसने आपसे बदतमीजी की होगी कभी. This is not the value of this house. ये इस घर की वैल्यू नहीं है. Amen. और आपकी कीमत इस पे नहीं कि आप कौन सी गाड़ी पे आते हो, कितना पैसा है. आप सब परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो और इस घर का परिवार हो. And your worth and your value is not determined by what car you drive, what house you live in, but the fact that you are sons and daughters in this family. Amen. And we love you. और हम आपसे प्यार करते हैं. And as your leader, this is my desire that you will see the best of God in your life. और आपका लीडर होने के नाते ये मेरी चाहत है कि आप परमेश्वर का सर्वोत्तम अपनी जिंदगी में देखो. Oh hallelujah. चलो अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया बच्चा. So परमेश्वर ने आदम को किसके सो, मैं जल्दी जल्दी जा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि अगर वरना रात के 8 बज जाएंगे. ठीक है, फ्लो की कमी नहीं है. फ्लो बोलोगे तो फ्लो आता रहेगा. There's no dearth of flow. फिर मुझे पेटों की आवाज आने लग जाती है यहां पे. So, amen. ठीक है, चलें. So, परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप में बनाया. God made Adam in his own image. मगर फिर परमेश्वर का वचन कहता है कि आदम ने क्या किया, वो गिर गया. जेनेसिस 5:3 में लिखा है कि आदम ने जो, ओके, सो इसको ऐसे कर लेते हैं. परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप में बनाया, राइट? God made Adam in his own image. मगर आदम जब गिर गया, जब पाप आ गया, When Adam fell in sin, तो आदम की वो जो इमेज थी वो करप्ट हो गई. the image of Adam got corrupted. अब आदम ने क्या किया, क्या लिखा है, देखिए क्या लिखा है. मैं हिंदी में पढ़ देता हूं जल्दी से. कि आदम ने अब अपनी समानता के अनुसार एक पुत्र को उत्पन्न किया. किसकी समानता के अनुसार? अपनी समानता के अनुसार. तो उसकी समानता कैसी थी? अब करप्टेड इमेज. कैसी थी? जो भ्रष्ट हो चुकी थी. अब आदम ने अपनी समानता में एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम सेत था. Now Adam gave birth to a son in his likeness which was corrupted, whose name was Seth. सो अब क्या हो गया? जो परमेश्वर ने जैसा आदम को बनाया था, अब पूरी छवि बिगड़ चुकी है. Now as God had made Adam, the whole image is corrupted. अब वो परमेश्वर के स्वरूप नहीं है. Now he is not in the image of God. आज आप देखो कुछ लोग ऐसी ऐसी हरकत करते हैं कि शायद जानवर भी ना करें. Today some people do such things that even animals won't do it. क्या हुआ? वो छवि खराब हो गई. The image was corrupted. और फिर क्या हुआ? फिर प्रभु यीशु मसीह को आना पड़ा. And then the Lord Jesus had to come. आइसाया 52:14 में पैशन ट्रांसलेशन में इतना बढ़िया लिखा है. इसमें लिखा है, His appearance was so marred like an object of horror. यशाया 52:14. जैसे बहुत से लोग उसे देखकर चकित हुए क्योंकि उसका रूप यहां तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा जान नहीं पड़ता. ऑब्जेक्ट ऑफ हॉरर. वो डरावना सा लगता था. जो आप पिक्चर देखते हो ना क्रूज में, आप देखते हो पैशन ऑफ क्राइस्ट, वो बहुत सुंदर दिख रहे हैं यीशु मसीह. असली में वैसा नहीं था. असली में ऐसा था जैसा एक मांस का लोथड़ा लटका दिया हो. अगली, ही टुक द अगलीनेस ऑफ ह्यूमन नेचर. When you see in the Passion of Christ, that is very beautiful. But in reality, the Bible is saying, when Jesus was on the cross, he looked like a piece of flesh hanging on the cross. देखो क्या लिखा है, he no longer looked like a man. वो इंसान जैसा नजर ही नहीं आ रहा था. आप सोच सकते हो कभी कि अगर क्रूस पे भी किसी को चढ़ाया तो भैया लोग क्या बोलेंगे, एक इंसान को तो चढ़ाया, मगर उसको इतना मारा गया, उसको इतना पीटा गया कि बाइबल कह रही है वो अब इंसान भी प्रतीत नहीं होता था क्रूस पे. उसकी पूरी छवि, यीशु मसीह ने अपनी पूरी छवि बिगाड़ दी ताकि जो हमारी खराब छवि थी वापस हमें एक अच्छी छवि दे दे.
Even if a man was crucified, someone can look and identify that this is a man who is crucified. But Jesus' image was marred till that extent that he no longer looked like a man. He took that corrupt image of Adam on himself completely so that he can give us his own image. कई लोगों को बस लगता है यीशु मसीह स्वर्ग ले जाने, स्वर्ग 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 जाएंगे. Some people think Jesus came to take us to heaven. अरे ऐसी छवि में थोड़ा ना जाओगे स्वर्ग. But you won't go to heaven in such an image. पहले छवि ठीक होगी, So first he will फिर fix स्वर्ग your भी image. जाओगे. Then you'll go to heaven. मगर पहले वो आपकी छवि ठीक करे. But first he corrects that image. सो आदम से जितने लोग आए उन सब की छवि क्या थी? करप्ट थी. So all those that came from Adam, their image was corrupted. आमेन. अब मैंने आपको क्या बताया था, जब एक मछली पैदा होती है तो वो स्विमिंग क्लास नहीं जाती, उसको स्विमिंग सीखने की जरूरत नहीं होती, उसके डीएनए में तैरना है क्योंकि मछली से पैदा हुई. When a fish is born, it doesn't have to go for swimming classes. It's in the very DNA of a fish to swim. राइट? ऐसे ही जब आदम पापी बन गया और आदम ने अपने स्वरूप में जन्ने लगा बच्चे और वो और बच्चे, तो क्या हुआ? हम उस पाप में स्वभाव में पैदा हुए. और किसी को पाप, आपको किसी ने पाप सिखाया आज? कभी गए आप 30 डेज में झूठ बोलना सीखे? When Adam's image was corrupted and he had children, the children were born in that corrupted image. Nobody had to teach you how to lie, 30-day course to lie. Nobody had to do that. क्रैश कोर्स, 10 दिन में जलन कैसे रखते हैं सीखे. Crash course for jealousy in 10 days. आप सोचो, जो सिखाया ही नहीं किसी ने, वो अपने आप प्रकट हो रहा है. क्यों? क्योंकि हमारी इमेज करप्ट हो चुकी थी. Can you imagine what nobody taught has started to manifest because the image of man was corrupted? किसी ने आपको आज नहीं सिखाया Nobody जलन has taught you रखना, today to be jealous. द्वेष रखना, बिटर हो have जाना. bitterness. अंदर से मैनिफेस्ट कर. It manifested from within. और इसीलिए यीशु मसीह आया This is why Jesus कि came. वापस हमें उस छवि में ले जाए जो परमेश्वर ने आदम को उस बगीचे में दी थी. So that he could take us back to that image which God gave to Adam in that garden. मैं आपको बता रहा हूं, कभी गॉस्पेल अगर आप समझे, गॉस्पेल इतनी ग्लोरियस है, सुसमाचार इतना ग्लोरियस है. If you understood the gospel, it is so glorious. ओके, पहला कुरिन्थियों 15:48 से 49 देखते हैं. 1 Corinthians 15:48 and 49. ध्यान से सुनिए. आप जीवित हैं? कितने लोग जीवित हैं? हाथ दिखाइए. ओके, जो सो गए हैं हाथ दिखाइए. ओके. अब देखिए, आदम को परमेश्वर का वचन क्या कहता है. अब एक बार हमने वो गाया था ना, ये जीवन 2 दिन का, तो मैंने उसमें कहा था नहीं भैया, ये जीवन अनंत का. इतने कमेंट आए ईसाइयों के, मुझे इतने कमेंट आए, कमेंट पे कमेंट, कमेंट पे कमेंट. तो सुसमाचार तो समझ लो पहले. First, understand the gospel. अगर शरीर हो तो ये जीवन 2 दिन का है, अगर आत्मा हो तो ये जीवन अनंत का है. If you are a body, then the life is limited. But if you are a spirit, this life is eternal. अरे मसीह में आने के बाद भी बोल रहे हो जीवन 2 दिन का. Even after coming to Christ, you are saying the life is for अब today. सुनो, गॉस्पेल सुनो ध्यान से, कान Hear the खोलो. gospel carefully. ओके, कान खोलो. 1 Corinthians 15:48 to 49. As was the man of dust. जैसा वह मिट्टी का था मनुष्य. क्या है? आदम को क्या बोला परमेश्वर ने? The man of dust. परमेश्वर ने आदम को मिट्टी का मनुष्य कहा. मिट्टी का, कीचड़ का. As was the man of dust, so also are those who are made of dust. वैसे ही वे भी हैं जो मिट्टी के हैं. यानी आदम से जो पैदा हुआ आज, वो भी क्या है? मिट्टी के हैं. So anyone born from Adam is of dust. तो गाएं, ये जीवन है माटी का पुतला, पानी लगत गल जाई. मगर उसका वचन कहता है, जब तू पानी में से होकर चलेगा तो भी तुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर. But his word says, even though you walk through water, it will not harm you. I am your God. मैंने आपको क्या बोला? सुसमाचार को समझना बहुत जरूरी है. It is important to understand the gospel. अब ध्यान से सुनो. जो उस मिट्टी के मनुष्य से, हिंदी में क्या लिखा है? जो मिट्टी का था, हाँ,
द मैन ऑफ डस्ट, उससे जो उत्पन्न हुए वो क्या है? मिट्टी हैं. Those who were born from the man of dust were also dust. आज ये नहीं है ये ईसाई धर्म, ये इस्लाम, हिंदू धर्म, सिख धर्म. अभी दो ही प्रजाति हैं दुनिया में, दो ही हैं. It's not about religions, it's about two species on the earth. एक जो पहले आदम से जन्मी है, पहले आदम से, और दूसरी जो आखिरी आदम से जन्मी है. The first species that was born from the first Adam, and the second species which is born from the second Adam, the last Adam. ओके, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है. This has nothing to do with religion. So ध्यान से सुनो. As was the man of dust, so also are those who are made of dust. जैसा वो मिट्टी का था वैसे ही वो भी हैं जो मिट्टी के हैं. Oh hallelujah. And as is the heavenly man, so also are those who are heavenly. और जैसा वह मिट्टी का, जैसे वह स्वर्ग का मनुष्य है वैसे ही वे भी हैं जो स्वर्गीय हैं. Okay. Heavenly man. स्वर्गीय पुरुष. बोलो, मिट्टी का पुरुष, स्वर्गीय पुरुष. जो पहले आदम से जन्मे वो सब पापी हैं और मिट्टी हैं. और बाइबल कहती है मिट्टी वापस मिट्टी में मिल जाएगा, और यही उनके साथ होगा जो पहले आदम से पैदा हुए. Those who are born from the man of dust, the first Adam, are of dust, and the dust will go back to dust. This is what will happen to those. मगर ध्यान से सुनो, But here carefully. हम सब भी पहले आदम से पैदा हुए नहीं हुए? We all are also born from the first Adam. हुए नहीं हुए? Are we not? हाँ, पहले हम किससे पैदा हुए? आदम से. First we were born from the first Adam. ठीक है. मगर जब हमने मसीह को माना But तो when we क्या हुआ? received Jesus, what happened? हमारा नया जन्म हुआ है. We are born again. इसीलिए आप सुसमाचार को समझ. ठीक है, अभी तक यूहन्ना 3:3 लगाइए. मैं चाहता हूं आप समझे, सुसमाचार को समझे. I want you to understand the gospel. यहां से रास्ता और रोशनी और रोशनी और रोशनी से भरा हुआ है. From here अब on, अंधकार नहीं है आगे. from here on, the path is brighter and brighter and brighter with यहां light. से रॉकेट अब ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं जाने वाला. From here, the rocket is only going to go higher, not down. आमेन. हाँ, तो समझो, पहले यीशु ने उससे क्या कहा कि जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे, जब तक तू नए सिरे से ना जन्मेगा निकोदेमस, तू स्वर्ग के राज्य को नहीं देख सकता, ना उसमें प्रवेश कर सकता है. Unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. अब निकोदेमस को समझ में नहीं आया, नए सिरे से क्या मैं माँ के गर्भ में दोबारा चले जाऊं? Now Nicodemus doesn't understand. How can I go into my mother's womb again? So स्वर्ग कौन जाएगा? Who will go to ईसाई नहीं heaven? जाएगा. Not religious स्वर्ग वो Christians. जाएगा जो नए सिरे से जन्मा है. Those who are born again will go to heaven. ठीक है. क्या गुस्से से देख रहे हैं मुझे? समझ रहे हो आप मैं क्या कह रहा हूं? इसका ईसाइयत से आपका नाम जॉन, थॉमस, ये क्या जो भी है उससे कोई लेना देना नहीं है. This has nothing to do with the religion of Christianity, no matter what your name is. अगर नए सिरे से जन्मे हो तो नाम राम, कृष्ण, मोहन, सुरेश, अंकित, सामर्थ, जो भी हो सब जाएंगे. If you are born again, no matter what your name is, you will go to heaven. आज लोग हम पे आरोप लगाते हैं, तुम्हारा नाम क्या है, ये तुम्हारा नाम कैसे हो सकता है ऐसे? अरे भैया, यही नाम है, यही है, और इसी नाम से स्वर्ग में प्रवेश करेंगे. Some people put an allegation. What is your name? And नाम बदलने की जरूरत नहीं है. you don't have to change your ऐसा name. नहीं है कि आप स्वर्ग में जा रहे हो, स्वर्गदूत कहता है मन तो मेरा बहुत था The angel won't say, I really wanted to let कि you मैं in, दरवाजा खोल दूं, that I would open the door. मगर तेरा नाम सही नहीं है. But your name is not right. No, no, no. Are you getting what I'm saying? It's not about the name. मुद्दा नाम का नहीं है. It's about are you born again? सवाल यह है क्या आपने नया जन्म पाया है? So हर कोई व्यक्ति जो इस पृथ्वी में आया उसने क्या किया? मांस और लहू से जन्म लिया. पहले आदम से जन्म लिया, मिट्टी से जन्म लिया, इसीलिए मिट्टी बना. Everyone that is on the earth was born first from flesh and blood, from the first Adam, so he became dust. यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं
कि यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। जो नए सिरे से नहीं जन्मता वो धर्म में होता है, जो नए सिरे से जन्म ले देता है वो परमेश्वर के राज्य को देखने लग जाता है। Jesus said, unless you are born again, you cannot see the kingdom of God. One who is not born again is in religion, but one who is born again starts to see the kingdom of God. इसीलिए मैंने आपको कहा था, इस रिश्ते को धर्म लगाना या धर्म टैग करना ये इंसल्ट है। This is why I had said to call this relationship a religion is an insult. हम किसी धर्म में नहीं हैं, हम परमेश्वर के राज्य में हैं। We are not in any religion, we are in the kingdom of God. ओके? क्योंकि यीशु ने कहा जो शरीर से जन्मा वो शारीरिक है और जो आत्मा से जन्मा वो आत्मिक है। Because Jesus said, he who is born of the flesh is flesh, he who is born of the spirit is spirit. जिस दिन आपका हैप्पी बर्थडे है मतलब वो आपका शरीर का जन्म है। The day you were born is your physical birth. जिस दिन आप मसीह में आए आपने आत्मा से जन्म लिया। The day you receive the Lord Jesus is when you were born in the spirit. तो कितने जन्म है आपके? How many births do you have? 2। 2 births. ये पुनर्जन्म नहीं है। It's not क्योंकि जो reincarnation. पुनर्जन्म कह रहे हैं वो मर के फिर मिट्टी से ही आएंगे, फिर शरीर से पैदा होंगे। हम अब शरीर से पैदा होने की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं अब हमने आत्मा से जन्म लिया है। Those who are talking about reincarnation, they are talking about again being born from dust. Now we have taken a new birth, a born again experience. Jesus is not talking about getting born again from the same source. That is reincarnation. Reincarnation means getting another birth from the same source. यीशु दोबारा से पैदा होने की बात नहीं कर रहे, एक ही सोर्स से दोबारा पैदा होने की बात नहीं कर रहे। पुनर्जीवन की बात नहीं कर रहा। हाँ, पुनर्जीवन कहते हैं ना? नहीं, पुनर्जीवन कहते हैं क्या? नहीं पता आपको? लोग इंडिया में ही रहते हैं। सो यीशु मसीह is not talking about reincarnation, क्योंकि reincarnation की जो थ्योरी है उसमें आप दोबारा जो जन्म लोगे फिर मांस से लोगे, फिर शरीर से लोगे। Jesus is not talking about reincarnation because in reincarnation again you are born from the flesh. यीशु बात कर रहा है अब एक अलग स्रोत से जन्म लेने की, आत्मा से जन्म लेने की। Jesus is talking about being born again from a different source, from the spirit. ये जो शब्द है born again, put the word again, this word is anothen. The word born again या नया जन्म पाना ये anothen शब्द है। It means born from above. इसका अर्थ है ऊपर से जन्म लेना। क्या लिखा है? From above, ऊपर से, from the first, पहले से। पहला और अंतिम मैं हूं। I am the first and the last. जब आप मसीह में आए तो आपने उस पहले से जन्म लिया, आपने ऊपर से जन्म लिया। When you came to Christ, you got born again from above. तो कुछ लोग हैं जो नीचे वाले हैं, कुछ लोग हैं जो ऊपर वाले हैं। पहले हम बेसमेंट वाले थे, जब हमने मसीह को जान लिया अब हम ऊपर वाले हैं। So there are some who are from below and there are some who are from above. Before we were from below, but now that we have Jesus, we are from above. I am about to tell you something, it will blow your mind, you will love it. मैं कुछ बताने वाला, आप हैरान हो जाएंगे। तैयार हो जाओ। Okay, so that ये डर आज के बाद हमेशा खत्म हो जाएगा कि मैं जा रहा हूं स्वर्ग, नहीं जा रहा, हे प्रभु अंतिम सांस में मुझे भूल ना जाना। So that this fear will leave you whether I'm going to heaven or not. क्योंकि सुसमाचार नहीं जानते इसलिए लोग ऐसी बातें करते हैं। Because people don't know the gospel, so they talk like this. Many people think they are trying to become the better version of old Adam. कई लोगों को लगता है कि वो पुराने आदम का एक बेहतर वर्जन बन रहे हैं। वो धर्म है। That is religion. अगर पुराना आदम बेटर बन सकता, if the old Adam could have become better, तो परमेश्वर को आखिरी आदम भेजने की जरूरत ही नहीं पड़ती। then God had no need to send the last Adam. Hear this, I'm about to say something. Every religion is dealing with first Adam. हर एक धर्म उस पहले आदम को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। Did you get it? Every religion is trying to fix the first Adam. हर एक धर्म उस पहले आदम को ठीक करने का प्रयास कर रहा है। Jesus came to establish a new race. यीशु एक नई
प्रजाति को रखने आया, उसको पैदा करने आया। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? सो दिस एनोथिम मीन्स ऊपर से जन्म लेना। कहां से जन्म लेना? तो जब हमने शरीर से जन्म लिया तो हमने नीचे से जन्म लिया। हम एक नीचा जीवन देख रहे थे। वी वर एक्सपीरियंसिंग अ लो लाइफ। व्हेन वी गॉट बोर्न अगेन फ्रॉम अबव, नाउ वी कैन एक्सपीरियंस अ हाई लाइफ। Anothem means to be born from above. When we were born from below, we were living a life that is below. Now that we are born from above, we experience a life that is above. क्लियर हो गया? अब वापस आओ उसी में। 1 Corinthians 15:48-49। ओ गॉस्पेल इतना ग्लोरियस है। मैं सोच लो आज बाइबल कॉलेज है, ठीक है, रात तक चलें। Come on. आमीन। $1 million टीचिंग दे रहा हूं मैं आपको। I'm giving you $1 million teaching today. ओके, $1 million trillion। क्योंकि ये सच अगर पता लग गया, शैतान छू नहीं पाएगा आपको। Because if you learn this truth, the devil will not be able to touch you. ओके, सुनो। जैसा वो मिट्टी का था वैसे ही वे भी हैं जो मिट्टी के हैं। As he was made of dust, so are those who are made of dust. सबसे पहली बात तो आखिरी आदम किसे कहा गया बाइबल में? Who was called the last Adam? जीसस। Jesus. ठीक है, उसके आगे so also are those, and as is the heavenly man, so also are those who are heavenly. जैसे वो स्वर्गीय पुरुष है, वैसे ही वे भी हैं जो स्वर्गीय हैं। कैसे हैं हम? कैसे हैं हम? वैसे हैं जैसे वो स्वर्गीय है। We are as he is heavenly. आप आज भी अपने आप को पुराने आदम में देखते हो। Even You still today- see yourself as old Adam. That's the problem. यही दिक्कत है। यीशु मसीह ने कहा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें हर एक बंधुआई से आजाद करेगा। Jesus said you will know the truth and the truth will set you free from every bondage. हम क्या कोशिश कर रहे हैं? हम सोचते हैं हम हैं अर्थली, What we are trying to do is we think we are earthly और हम मेहनत कर रहे हैं And कि we are जितनी laboring. ज्यादा मेहनत करेंगे हल्के हल्के हेवनली बनेंगे। as we will labor, the more we labor, slowly we'll become heavenly. बाइबल सेज The Bible says. those who are born of first Adam, as he is a man of dust, they are man of dust. Those who are born from above, as is the heavenly man, so they are heavenly. बाइबल कहती है जैसा वो पहला आदम था जो मिट्टी से जन्मा था, वैसे ही वो है जो उसके स्वरूप में जन्मे हैं। लेकिन जैसा वो स्वर्गीय मनुष्य है जो स्वर्ग से आया, वैसे ही वो है जो उससे जन्मे हैं। आपको मजा नहीं आएगा आपको ये सुन के ना ज्यादा। मैं बोलता अभी ओ हालेलुया, ओ लॉटरी निकल रही है इसकी, आमीन। अरे ये लॉटरी निकल गई तो जिंदगी में किसी लॉटरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। If you know this lottery, you'll not need a lottery in your life. सुसमाचार समझ गए तो हाई लाइफ देखोगे, उड़ोगे स्पीड में जिंदगी में। If you understand the gospel, you will experience a high life. You will live a life of speed. Okay, so Paul is making a bold contrast. पौलुस एक बहुत बड़ा अंतर कर रहे हैं यहाँ पे। He's saying first Adam represents the man of dust. वो कह रहे हैं पहला आदम मिट्टी के मनुष्य को दर्शाता है। He represents humanity's fallen nature. वो इन मनुष्य जाति के गिरे हुए दशा को दर्शाता है। Every person born into this world carries that fallen DNA. हर एक मनुष्य जो पृथ्वी पे पैदा होता है उस गिरे हुए बनावट में है, Marked by sin, limitation and mortality. जिस पर पाप की छाप है, सीमाएं हैं उस पर और मरणहार है। And then he talks about the heavenly man that is और Jesus. फिर वो बात करता है उस स्वर्गीय पुरुष की जो यीशु है। And Jesus introduces a new species on this earth. और यीशु इस पृथ्वी पर एक नई प्रजाति को पैदा कर देते हैं, Heavenly, divine and eternal. जो स्वर्गीय है, अलौकिक है और अनंत के लिए है। ये जीवन है मिट्टी का पुतला नहीं, ये जीवन है स्वर्ग का टुकड़ा। This life is a piece of heaven on the earth. ना पानी गले ना आग से जले, हालेलुया। केवल आगे बढ़े, हालेलुया। Amen. So now we represent the heavenly man.
अब हम उस स्वर्गीय मनुष्य के प्रतिनिधि हैं। हालेलुया। मैं आपको बहुत जल्दी बता रहा हूं कि आप इसको समझो, फिर हल्के हल्के आपको ले जाएंगे। कई लोग आज डरते हैं मसीह में आने के बाद। मसीह में आ गए, परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो गए, और उनको लगता है कि मरने के समय क्या होगा, अगर क्या पता परमेश्वर हमें बोल देगा चल निकल ले यहां से। Many people today are so afraid what will happen to them when they die. What if God tells them get out of here? क्या तुम मरने के बाद स्वर्ग जाओगे? Will you go to heaven when you die? मैंने कहा क्या तुम मरने के बाद स्वर्ग जाओगे? I said will you go to heaven when you die? और मैंने कहा हम I said- स्वर्ग जाएंगे नहीं, हम स्वर्ग से आए हैं। And I said we will not go to heaven, we have come from heaven. ओके, दैट इज द गॉस्पेल। ये है सुसमाचार। परमेश्वर ने कहा डस्ट विल गो बैक टू डस्ट, योर एंड इज यू गो बैक टू वेयर यू केम फ्रॉम। God said that परमेश्वर ने कहा मिट्टी जो है वो मिट्टी में वापस मिल जाएगी, आपका अंत वो है जहां से आपकी शुरुआत हुई थी। देखो मिट्टी है, हम तो मिट्टी में मिल जाएंगे, Oh, we are dust, we'll go back to dust. मगर हम तो स्वर्गीय हैं, तो But we कहाँ are- जाएंगे? But we are heavenly, so where will we go? वी आर born from above। हम ऊपर से पैदा तो हुए हैं। भैया हम ऊपर जाएंगे नहीं, हम ऊपर से आए हैं। So not that we are trying to go up, but we have come from above. That's the gospel। ये है सुसमाचार। Heaven is not just my destination, heaven is my origin। I came from the Father's bosom। स्वर्ग केवल मेरी मंजिल नहीं है, स्वर्ग तो मेरी, वहां से तो मेरी शुरुआत हुई है। मैं पिता की गोद से निकला हूं, वहां वापस जाऊंगा। जितनों ने उसे ग्रहण किया, यूहन्ना 1:12, उन्हें यह अधिकार दिया गया कि वे मांस और लहू से नहीं, मनुष्य की इच्छा से नहीं, मगर परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। ए हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, हम कहां से उत्पन्न हुए हैं? परमेश्वर से जो स्वर्ग में है, वो ऊपर से उत्पन्न हुए हैं। As many as have received him, to them he gave the right to become the children of God, those who believe in his name, who are not born according to flesh but according to spirit, according to the will of God. Our Father in heaven, we are from above, we are born from God. आप घर से आए चर्च में, You came to church चर्च from के your बाद house. कहां जाओगे? घर जाओगे। तो भैया हम हेवन नहीं जाएंगे, हम घर वापस जाएंगे। After church, you will go back to your houses, you will go back to your home. So we are not going to heaven, we came from heaven. यहां तो असाइनमेंट के लिए आए हैं। We have come here for a work. पिता ने काम दिया है करने के लिए। God has given us a work. जब काम पूरा हो जाएगा तो वापस अपने पिता के पास जाएंगे। When the work is over, we will go back to our Father. I'll show you. Okay, hear this. यीशु मसीह ने क्या कहा? जहां मैं जाता हूं वहां, बोला नहीं बोला? मेरे पिता के घर में रहने के बहुत सारे स्थान हैं, अगर नहीं होते तो कह देता, मगर मैं जाके तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं कि जहां मैं रहता हूं वहां तो हम कहां रहेंगे? जहां यीशु रहता है। अब मैं आपको दिखाता हूं यीशु कहां जा रहा है और कहां रहता है। Jesus said, I go prepare a place for you. If it was not so, I would have told you, but I go and prepare a place, so where I am, you will also be. We are Hallelujah. going where Jesus is. यूहन्ना 16 उसका 28, John 16:28, I came forth from the Father and have come into the world। अब ध्यान सुनो, ये हमारी भी स्टोरी है। यीशु कह रहा है मैं कहां से आया? मैं पिता की ओर से जगत में आया। कहां से आया? एक्चुअली हिंदी में ना सही, ओर से नहीं, I came from the, मैं पिता से निकल के आया। मैं कहां से आया? मैं पिता से आया और इस जगत में आया हूं। I came forth from the Father and have come into the world. Again I leave the world and go to the Father। Hallelujah। मैं पिता से जगत में आया हूं और फिर जगत को छोड़कर पिता के पास जाता हूं। यीशु पिता के पास क्यों जा रहा है? क्योंकि वो पिता से आया है। हम पिता के पास क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हम पिता से आए हैं। ये सुसमाचार है। Jesus is going back to the Father because Jesus has come from the Father. We are going back to the Father because we have come from the Father. So we are not just going to heaven, we have come from heaven, we have come to this world, and after our race is over, we will go back to the Father। So हम सिर्फ स्वर्ग जा नहीं रहे, लेकिन स्वर्ग से आए हैं। अपना काम जब पूरा हो जाएगा, हमारी दौड़ पूरी हो जाएगी, तो हम पिता के पास वापस जाएंगे। यीशु कहां जा रहा है? कहां गया?
Where did Jesus go? कहाँ गया? पिता के पास। और यीशु ने क्या कहा? मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं कि जहां मैं रहता हूं वहां। And he said, I go prepare a place so where I live you will also be. तो भैया मान लो उसके वचनों को। Then believe what he's saying. सुसमाचार समझा ही नहीं हमने। You've not understood the gospel. आप जानते हैं, मैं आपको केवल वो बात कह रहा हूं जो वचन में, मुझे पता है बहुत सारे फरीसी फुक जाएंगे जो मैं बोलने वाला हूं। I'm only telling you what is in the word. I know many Pharisees would hate. पौलुस ने 2/3 बाइबल लिखी और एक भी बार नरक नहीं लिखा उसमें। Paul wrote 2/3 of the New Testament and did not write hell even one आप time. जानते हैं क्यों? You know why? क्योंकि वो न्यू क्रिएशन के लिए लिख रहा था। Because he was writing it for the new creation. आपके लिए नरक है ही नहीं भैया। Hell is not meant for you. मैं ये नहीं कह रहा हूँ नरक नहीं, आप कहीं, मुझे पता है मैसेज आने लग जाएंगे मुझे। I'm not saying hell does not exist. I know hell exists. क्लिपिंग बन जाएगी। They'll make videos out of this. मैं ये नहीं कह रहा हूँ। I'm not saying that. नरक है, Hell exists. है, It exists. मगर उनके लिए है जो अपने पिता से पैदा हुए। जहां उनका पिता है वहां वो जा रहे हैं, हम वहां जा रहे हैं जहां हमारा पिता है। But hell is for those who are born from their father. They will go where their father is. But we are going where our father is. Amen? हम लोग स्वर्ग से पैदा हुए भाई। We are born from heaven. मेरे बच्चे जो मेरे घर में पैदा हुए, My children who are born in my house, जब वो घर से बाहर जाते हैं when they go out of the house, तो क्या उन्हें कमाना पड़ता है घर के अंदर आने के लिए? do they have to earn to get back in the house? अरे जो घर में पैदा हुए वो बाहर जाते हैं, वापस घर में आते हैं। Those who are born in the house, they go out, they come back in the house. ओके? मैं चाहता हूं आप समझो इस बात को कि आप कहां से, आप उत्पन्न कहां से हुए। आप रॉकेट नहीं हो कि पृथ्वी में आग लगाई तो स्वर्ग में जाने की कोशिश कर रहे हो। Know where your origin is. You're not a rocket that you're trying to get into heaven. Jesus said, no one has ascended to heaven but he who first descended. So principle क्या है? अगर heaven उठना है तो पहले वहां से आना पड़ेगा, तभी ऊपर जा सकते हो। यीशु ने बोला कोई भी स्वर्ग में नहीं चढ़ा जो पहले स्वर्ग से उतरा ना हो. The principle is if you want to get into heaven, you must have come down from heaven first. So you cannot ascend if you have not first descended. आप तब तक हेवन स्वर्ग में चढ़ नहीं सकते जब तक पहले स्वर्ग से उतरे ना हो. अगर बोले क्या आप स्वर्ग जाओगे? If someone says, will you go to heaven? बोलना हाँ मैं घर जाऊंगा. Tell them, yes, I will go back home. और अगर अभी कॉन्फिडेंस नहीं है तो अभी सुसमाचार नहीं जानते. And if you don't have confidence yet, you do not know the gospel then. यीशु ने कहा एक दास घर पे वास नहीं करता मगर पुत्र सदा घर में वास करता है. Jesus said a servant does not abide in the house forever but a son abides in the house forever. चलिए ये स्क्रिप्चर देखते हैं. Philippians 3:20. For our citizenship is in heaven. पर हमारा स्वदेश स्वर्ग है या हमारी नागरिकता. हालेलुया. बाइबल नहीं कह रही your citizenship will be in heaven. The Bible says your citizenship is in heaven. The Bible is not saying that your citizenship will be, वो होगी ऐसा नहीं लिखा, पर वो है ऐसा लिखा है. क्या है? Citizenship is. स्वर्ग है. आप जानते हैं सिटीजनशिप का एक सबसे बढ़िया चीज क्या होता है? You know what's the best thing about citizenship? You never earn your citizenship, you're born into the citizenship. आप कभी भी कमाते नहीं हो अपनी citizenship, आपको पैदा होने के कारण मिलती है. आपने 2000 बार जनगण मन गाया तब आपको भारत की नागरिकता नहीं मिली, क्योंकि आपने भारत में जन्म लिया इसीलिए आपको भारत की नागरिकता मिली. आपका केवल काम क्या था? जन्म लेना. अगर जन्म ले लिया तो नागरिकता आपकी है. अगर स्वर्ग से जन्म ले लिया तो स्वर्ग की नागरिकता आपकी है. You sang the national anthem 2000 times so they gave you the citizenship. No, you were born in India, that's why you are a citizen of India. You are born from heaven, so you are a citizen of heaven. I don't know if this is making sense to you. Is it? अब मैं इंडिया हूं, इंडिया में पैदा हुआ, इंडिया का नागरिक हूं. मैं यूरोप जाता हूं, दुबई जाता हूं, जहां भी जा रहा हूं, मैं प्रचार करने जाता हूं, तो फिर क्या करता हूं? फिर वापस आ जाता हूं. जहां का नागरिक हूं वहां आता हूं.
So I'm और a मुझे citizen- वीजा नहीं चाहिए आने के लिए। I'm a citizen of India. I go to Dubai, Europe, wherever I go to preach. When I come back to my own country, क्यों? to India. I don't need a visa. दरवाजे खुले हैं The doors क्योंकि are मैं नागरिक हूँ। दरवाजे खुले हैं क्योंकि आप स्वर्ग के नागरिक हो, बाइबल कह रही है। The doors are open because I am a citizen of this country. The doors of heaven are open for you because you are a citizen of heaven, the Bible is saying. ओके, अब मुझे पता है कई लोग इसमें वो करते हैं कि अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हो कि कोई कितना भी पाप में जिए वो स्वर्ग जाएगा। So are you saying nobody, no matter how much someone lives in sin, will they go to heaven? देखा, मैं कई लोगों के चेहरे खिल गए इस समय। बिल्कुल मेरे मन की बात पूछ लिया आपने। क्यों पाप में जीना डेडली है? मैं आपको ये बात बताऊं। Why it is deadly to live in sin, I'll tell you. क्योंकि अगर एक व्यक्ति पाप में जीता रहा तो एक समय ऐसा आता है जब वो मसीह का इनकार कर देगा। Because if a person keeps on living in sin, a time will come when they will deny Jesus. Hear this. सुनिए, You will never lose salvation because God will deny you. आप कभी भी उद्धार इस कारण से नहीं खोएंगे कि परमेश्वर ने आपका इनकार किया है। People who have lost salvation who have denied Jesus. जिन लोगों ने उद्धार गवाया, उन लोगों ने गवाया जिन्होंने यीशु का इनकार किया है। Why? Let me tell क्यों? you why. मैं वो भी बताऊं। Because salvation is not a prison. क्योंकि उद्धार एक जेल नहीं है। बाइबल कहती है उद्धार क्या है? इफिशियंस 2:8 में क्या लिखा है? वो गिफ्ट है। क्या है? गिफ्ट। और बाइबल कहती है द गिफ्ट एंड कॉलिंग ऑफ गॉड आर विदाउट रिपेंटेंस, यानी परमेश्वर जब तोहफा देता है तो वापस नहीं लेता, मगर आप उस तोहफे को ठुकरा सकते हो। The Bible says salvation is a gift, and when God gives a gift, He does not take it back, but you have the ability to deny a gift or to reject it. कितने ऐसे लोग हैं, मैं उन दोस्तों को जानता हूं I know those friends जो मेरे साथ थे, मसीह में थे, आज वापस चले गए, आज सारे वही काम कर रहे हैं। मसीह का इनकार कर दिया ओपनली, वापस मूर्ति पूजा वो सब कर रहे हैं। वो क्या है? प्रभु ने उनको कभी नहीं ठुकराया, उन्होंने परमेश्वर को ठुकरा दिया। I know those people who That's why sin is deadly and we should not live in sin. who have left Jesus. They have openly denied Jesus and now they have gone back to things. यीशु ने कभी उनको नहीं ठुकराया, उन्होंने यीशु को ठुकराया। पिता का घर हमेशा खुला था उड़ाऊ पुत्र का, वो उड़ाऊ पुत्र है जो घर से दूर चला गया। The father's house was always open for the prodigal son. It was the prodigal son who left the father's house and मगर went away. अगर आप परमेश्वर के बारे में सोच रहे हो तो याद रखो, वो कभी भी आपका इनकार नहीं करेगा। But if you are thinking about God, always remember that He will never ever deny you. मेरे बच्चे हैं, एलियाना, अमाया, जूडा, जब वो घर आते हैं मैं दरवाजा क्यों खोलता हूं? मुझे एक बात बताओ, क्यों घर का दरवाजा खोला? पहले मैं ये देखता हूं, अच्छा इन्होंने कितना सही जीवन जिया, अगर नहीं जिया तो दरवाजा क्यों खुलता है? दरवाजा मेरे घर का क्योंकि वो मेरे बच्चे हैं। My children, when they come back home, what do I see before opening the door? Do I see what kind of life they live? No, because they are my children, the door of my house is open for them. और सोचो एक बच्चा आ गया मेरे घर पे, उसके बाल ऐसे बन रखे हैं तेल लगा के, और बोले पापा मेरे 99.99% आए। Imagine a child comes knocking at my door and he's very well cladded and says I scored 99.99% in मैं school. बहुत ही अच्छा बच्चा हूँ पापा, मुझे घर ले लो। तो मैं क्या बोलूंगा उसको? अरे कौन है भाई, किसका बच्चा, मैं नहीं जानता इसको। And the child says I'm a very good child, Papa take me home. I will say I don't know this. क्योंकि वो मुझसे उत्पन्न नहीं हुआ। जब यीशु बोल रहे कुंवारियों में मैं तुम्हें नहीं जानता, वो धार्मिक लोग हैं जो यीशु से उत्पन्न नहीं हुए, वो धर्म में हैं। When Jesus tells that parable where he tells that those he denied, saying I don't know you are the people that are not born from him. चलो ठीक है, मैं बंद कर देता हूँ। मुझे लग रहा है आप बहुत एंजॉय कर रहे हो गॉस्पेल को। आप सुसमाचार समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं? वरना पूरी जिंदगी स्वर्ग और नरक में निकालेंगे, पिता के बारे में नहीं सोचेंगे, स्वर्ग और नरक। Otherwise, entire life you'll keep wondering about heaven or hell. You'll not even think यीशु about ने the कहा Father. बिना मेरे कोई स्वर्ग नहीं जाता। यीशु ने कभी कहा ही नहीं पूरी बाइबल में। Jesus said no one will go to heaven without me. See? Jesus never धर्म said ने क्या किया? पिता को ही हटा दिया, स्वर्ग डाल दिया पिता की जगह में। Religion. यीशु ने कहा बिना मेरे कोई पिता तक नहीं जा सकता। हमने पिता को बोला पिता आप साइड हो जाओ, स्वर्ग रखो यहाँ पे। Religion has removed. क्योंकि पूरे दिमाग में क्या है? स्वर्ग 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 स्वर्ग। अरे स्वर्ग स्वर्ग इसलिए है क्योंकि पिता वहां है, इसलिए स्वर्ग है।
The heaven is heaven because the Father is there. यीशु ने नहीं कहा स्वर्ग में जाना अनंत जीवन है, यीशु ने कहा पिता को जानना अनंत जीवन है। Jesus did not say going to heaven is eternal life. He said knowing the Father is eternal life. Amen. तो सिटीजनशिप कहाँ की है आपकी? हाँ, तो अगर सिटीजन हो तो वीजा का वेट क्यों कर रहे हो? So if you are a citizen, why are you waiting for a visa? सिटीजन हो भाई। You are a citizen. To be absent from the body is to be present in the presence of Lord. जिस दिन अपनी आंखें करी यहाँ बंद, वहां पिता की उपस्थिति में अपनी आंखें खोलोगे आप। शरीर में अनुपस्थित होने का अर्थ है परमेश्वर के सामने उपस्थित होना. When the day you close your eyes here, you will open your eyes before the Father. See, ऐसा दूसरे धर्मों में है। इस्लाम में वो बोलते हैं टिल द डे ऑफ दियामा, यानी डे ऑफ जजमेंट, हमें नहीं पता कि अल्लाह हमें जन्नत में डालेगा या जहन्नुम में डालेगा, नहीं पता। सो दे आर, पूरी जिंदगी वो काम करेंगे मगर अंत तक उनको नहीं पता कि वो कहां जाएंगे। मसीह में ऐसा नहीं है। This is in other religions. In Islam, they say till the day of Qiyamah, the day of judgment, we do not know whether Allah will send us to heaven or to hell. But this is not so in Christ. ऐसा मसीह में नहीं है। It is not so in Christ. इसीलिए सारी मसीहों की पूरी जद्दोजहद किस पे है कि भैया कुछ भी करके स्वर्ग मिल जाए। So all the believers, they are fighting, they are trying that no matter what we do, we should get to heaven somehow. तो पूरा सेंट्रल फिगर क्या है? The central figure स्वर्ग is heaven. इसीलिए पिता कहाँ है? पिता साइड में। So where is the Father? On the side somewhere. मगर जब आपको पता लग गया कि मैं स्वर्ग से आऊंगा और पिता के पास जाऊंगा, अब आपका पूरा ध्यान कहाँ है? पिता को प्रेम करने में, Now when you know पिता you को have, जानने में। when you know you have come from the Father and you will go back to the Father, now all of your awareness is to know the Father and to love Him. कुछ स्क्रिप्चर आपको बता देता हूँ कि आप चलो आपको थोड़ा समझ में आए, आप बोलो। यीशु की तो बात मानते हो आप? Do you believe Jesus? मैं आज भी हैरान हूं, इतने सारे मसीह So many believers. एक स्क्रिप्चर लेंगे which is a parable and they will make an entire doctrine out of it. They will take one scripture which is a parable और पूरी doctrine बना देंगे उसमें से. कुंवारी स्त्री, कुंवारी स्त्री, कुंवारी स्त्री, यीशु मना कर देगा हमें। The words is the word Jesus will deny us. ओके, बहुत प्यार मिलने वाला है मुझे इसके बाद, पर ये प्यार पाने के लिए ही खुदा ने मेरा अभिषेक किया है। God has anointed me for such love. पहला यूहन्ना 5:13 देखो क्या लिखा है। इफ यू विल ओनली रीड एंड बिलीव द वर्ड, ठीक है, केवल अपना इंटरप्रिटेशन नहीं घुसाएंगे, जो लिखा है वो मान लेंगे बस, ठीक है? मान सकते हैं? क्या खुदा का वचन है? क्या यीशु झूठ बोलता है? नो। अब देखो क्या लिखा है, These things I have written to you, अपोस्टल जॉन कह रहा है, These things I have written to you who believe in the name of the Son of God. किसके लिए लिख रहा है वो? कितने लोग यहाँ पे परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करते हैं? तो आपके लिए लिख रहा है वो, ठीक है? देखो क्या लिखा है, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसीलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। अब इससे ज्यादा क्लियर क्या हो सकता है? It is saying those who know the name of the Son of God, that you may know that eternal life is yours. That you may know that you have eternal life. Not that you will have someday, you have eternal life right now. ये नहीं कि किसी दिन मिलेगा अनंत जीवन, बल्कि ये कि आपके पास अनंत जीवन है। वो तो ठीक है पास्टर, मगर कुंवारी स्त्री, Oh, that is okay, pastor, but what about the virgins? तो भर लो तेल भाई, क्यों डर रहे हो जिंदगी भर? Fill the oil, then why are you afraid all your life? आओ ऑल नाइट प्रेयर में, Come for the all night prayer. कब तक इस डर में जियोगे कि खुदा आपको इनकार कर देगा? How long will you live in this fear that God will deny you one day? कितने लोग यहाँ पर हैं, अगर आपके बच्चे ने कभी गलत किया आप उन्हें इनकार कर दोगे? मैं गुस्सा होने की बात नहीं कर रहा, इनकार मतलब आप सबके सामने बोल दो ये कौन है, मैं तो जानता ही नहीं, किसके कौन है? How many people here would say, I don't even know this child. Whose child is this? When it's your own child who's done something wrong. पड़ोसी कहेंगे भैया आपका तो बच्चा, मैं तो जानता ही नहीं The कौन। neighbors will say, this is your son. अरे आपकी शक्ल मिली है, मैं जानता ही नहीं Your कौन। face matches. I don't even know who he is.
as is the heavenly man, so are those who are heavenly. अरे शक्ल मिलती है हमारी भाई, कैसे इनकार कर सकता है हमारा? Amen. जैसा वो स्वर्गीय पुरुष है वैसे ही हम भी हैं. Our face matches his face. How can नहीं he deny? इनकार कर सकता. He cannot deny us. धर्म आपको बताता है, खुदा तुम्हारा इनकार कर दिया अगर भागे नहीं ट्रेडमिल में और तेज. Religion tells you that God will deny you if you don't run on my treadmill faster. Religion is like running on a treadmill with as fast as you can and reaching nowhere. धर्म ऐसा है जैसे एक ट्रेडमिल पे जितना तेज हो सके भागना, लेकिन पहुंचना कहीं नहीं है. Do you know when you believe that God will deny you, how many scriptures are you violating or rejecting? क्या आप जानते हैं अगर आप ये कहते हैं कि परमेश्वर मेरा इनकार कर देगा तो आप कितने सारे वचनों को ठुकरा रहे हो, इनकार कर रहे हो. जब आप अभी अपने सोल में, अपने प्राण में असिद्ध हो, अगर आप असिद्ध अपने प्राण में होकर कभी अपने बच्चों का इनकार नहीं कर सकते, तो कैसा वो परमेश्वर जो प्रेम है जिससे हम उत्पन्न हुए, हमारी तरफ देखकर कह सकता है मैं इसको कभी नहीं जानता. When we being imperfect can never deny our children who are born out of us, how can God who is perfect ever deny the children that are born from him? You don't have to live all your life trying to gain approval of your father. You are already accepted in the beloved, Bible says. आपको जिंदगी भर ये मेहनत करने की जरूरत नहीं कि आपका स्वर्गीय पिता आपको ग्रहण कर ले. बाइबल कहती है उसने पहले ही आपको ग्रहण कर लिया उस प्रिय में. सोचो एक पत्नी और पति के बारे में, ठीक है? अभी Think about a husband and wife. हम जा रहे हैं पास्टर जी, आप तो कुंवारी स्त्री के बारे में नहीं बता रहे हो. सुसमाचार को जानो. Know the gospel. बाइबल में पौलुस ने पता है क्या? शैतान ने लोगों की आंखों को अंधा कर दिया है कि सुसमाचार का ज्योतिर्मय प्रकाश उनके ऊपर ना चमके. The devil has blinded the eyes of people that the glorious light of the gospel would not shine on them. ओके, अब सोचो एक पति और पत्नी हैं और पत्नी को ये डर है कि कभी भी मेरा पति मुझे घर से निकाल देगा और मुझे डिवोर्स दे देगा, मुझे इनकार कर देगा. Imagine a husband and wife, and the wife has this fear that my husband will deny me any day and divorce me and kick me out of the अब house. मुझे एक बात बताओ, कैसा रिश्ता होगा उनका? Now tell me, what kind of a relationship will they have? She will live in fear and paranoia. वो डर में हमेशा भयभीत होकर जिएगी. जैसे मसीह लोग जब कोई बोलता है यीशु आने वाला है, How believers act when someone says Jesus is coming back. बस वही रिएक्शन होगा उस पत्नी का भी. That's how that wife will also react. अरे अगर तुम्हारा प्रेमी है तो डर क्यों रहे हो? अगर वापस आने वाला है, तुम्हारे लिए कोई तो लेने आ रहा है तुमको. If it is your lover who is coming back, why are you so afraid? Because he's coming to take you. If you hear a message that Jesus is about to come back and you get afraid, you have not understood the gospel. अगर आप जब ये संदेश सुनते हो कि यीशु वापस आ रहा है और आपको डर लगता है, तो इसका अर्थ है अभी तक आपको सुसमाचार नहीं पता, आपने समझा नहीं है. अब सोचो वो पत्नी पूरे जीवन क्या कर रही है, अरे मैं कैसे मनाऊं ये मुझे रिजेक्ट ना कर दें. Now imagine, तो कभी भी वो असली में अपने पति को प्यार नहीं कर पाएगी, क्योंकि पूरी जिंदगी वो अपनी सीट बचाने की कोशिश कर रही है कि ये मुझे घर से बाहर ना निकाल दे. if all her life she's trying to please him that he doesn't kick me out of the house, she will never be able to truly love him. कितने मसीह ऐसे हैं जो पिता से प्यार नहीं करते, पूरे जिंदगी वो सीट बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि मरने के बाद कैसे भी करके स्वर्ग चले जाएं. So many believers, they don't love the Father, they're just trying to protect that seed that somehow after they die they should get a place in heaven. वो उस बड़े भाई की तरह है, जब उड़ाऊ पुत्र वापस आया और जब पिता ने दिल खोलकर उसके लिए पार्टी करी तो बुरा मान गया और बोला मैंने जिंदगी भर तेरी सेवा करी, विश्वास करा, मुझे तो तूने एक बकरी भी नहीं दी. It's like that elder son when he came back and when the prodigal came back and the father kept a party for him in the house. This elder son was so angry. I served you all my life, you never gave me a calf. और पिता ने कहा मेरे बेटे, ओ मेरे बड़े मूर्ख बेटे. And the father said, ये oh पिता ने my, नहीं कहा, ये मैं कह रहा हूँ. मूर्ख तो था वो. elder fool son. तो पिता ने कहा हे मेरे बेटे, He said, my son, जो मेरा है वो सब तेरा ही तो है. कमा क्यों रहा है? कमाने की कोशिश क्यों कर रहा है स्वर्ग को? Whatever- जो मेरा है वो तेरा ही तो है. the father said, whatever is mine is already yours. Why are you trying to earn heaven? It is already yours.
अब जब आपको पता लग जाएगा मैं स्वर्ग से आया तो स्वर्ग जा रहा हूं, तो अब रेस स्वर्ग जाने की नहीं है, अब रेस पिता को जानने की है। Now when you know you have come from heaven and you are going to heaven, now the race is not to go to heaven, the race is to know the Father. अब मैं उसकी अब मैं पवित्र जियो कि नरक ना चला जाए। अब मैं पवित्र इसलिए नहीं जी रहा कि नरक ना चला जाऊं, अब मैं पवित्र इसलिए जी रहा हूं क्योंकि मेरा पिता पवित्र है। Now I am not forced to live in holiness that I don't go to hell, but I live in holiness because my Father is holy. अब मेरे जीने का जो पर्सपेक्टिव है, जो मेरा दर्शन है, वो बदल चुका है। अब वो हेल को अवॉइड करना नहीं है, अब वो पिता के साथ घनिष्ठ संबंध से उसको जानना है। My perspective has changed. It is not avoiding hell, but it is knowing the Father deeply. हेल है ही नहीं भाई तुम्हारे लिए। Hell is not even for you. होता तो लिखता नहीं पौलुस। If it was, Paul would have written it. यीशु ने कहा, देख मैं मर गया था मगर अब मैं युगानुयुग जीवित हूं, और नरक की और मृत्यु अधोलोक की कुंजी अब मेरे पास है। Jesus said, I was dead, but now I am alive and alive forevermore, and I have the keys to Hades and death. क्या मैं आज ये कह रहा हूं अब हमें पवित्र जीवन नहीं जीना, क्या हम सारे गलत काम करें? नहीं, मैं कह रहा हूं अब हमारे जीवन का उद्देश्य बदल गया है। अब हमारा सही जीना स्वर्ग में अपनी जगह फिक्स करने के बारे में नहीं है, अब हमारा सही जीना इसलिए है क्योंकि मैं उस परमेश्वर से जन्मा हूं। Am I saying that we should not live a holy life, we can do whatever? No, I'm saying now we're not trying to live holy so we have a place in heaven. We are living a holy life because we are like our Father and we want to know Him. May the favor of Father locate you today in Jesus name. परमेश्वर की तरफदारी आपको ढूंढ निकाले आज यीशु के नाम में। Amen. उसका वचन, यीशु ने कहा, पिता सच्चे आराधकों को तलाश रहा है। सच्चे आराधक कौन है? जो पिता को तलाश रहे हैं। His word says the Father is looking for true worshippers. Who are true worshippers? Those who are looking for the Father. पिता तलाश रहे हैं उनको। The Father is looking for them. कोई मुझे तो जाने। Let someone know me. हाँ, सोचो आज अगर एक, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, वो इसलिए शादी करे, अरे दूसरे बड़े का बहुत बड़ा बंगला है, बड़ा 10 बेडरूम। Imagine if someone gets married to someone because they have a तो हम नहीं कर रहे, हम भी तो यही कर रहे हैं। Aren't we अरे doing the वहाँ same सोने thing? की सड़कें हैं। Oh, there's golden streets in heaven. No, नहीं। हमारा असली धन स्वयं परमेश्वर है। Our true treasure is God Himself. सोने की सड़कें स्वर्ग को स्वर्ग नहीं बनाती। The roads of gold don't make it heaven. पिता वहां पर है, वो स्वर्ग को स्वर्ग बनाता The है। Father is there, and that's what make it heaven. Amen. मैं आपको एक स्क्रिप्चर दिखाता हूं। ओह हालेलुया। तैयार हो आप? और उसके बाद फिर हम लोग प्रार्थना करेंगे, और मैं चाहता हूं कि आप कभी भी परमेश्वर का अप्रूवल कमाने की कोशिश नहीं करोगे। That you would never try to earn God's approval in life. कब आपको पता चलेगा कि आपका प्रेम जो परमेश्वर के लिए है, ना कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए, जो आपका प्रेम परमेश्वर के लिए है वो मैच्योर या परिपक्व हो गया है? When will you know that your love for God, not God's love for you, but your love for God is now perfect or matured? Okay. 1 John 4:17. 1 John 4:17. पहला यूहन्ना 4:17. Love has been perfected among us in this. इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ है। Love has been perfected among us in this way. That's what the Bible says. In this way you will know that your love for God has been perfected or has reached maturity. बाइबल कह रही है इस तरह से आपको पता लगेगा कि परमेश्वर के प्रति आपका प्रेम सिद्ध हुआ है कि नहीं हुआ है। कैसे? कैसे? That we may have boldness in the day of judgment. कि हमें न्याय के दिन हियाव हो, साहस हो। क्या हो? न्याय के दिन साहस हो। आपको क्या होगा? साहस होगा आपको। आप बोले, लोग बोले अरे यीशु आ रहा है, यीशु आ रहा है, आप बोलोगे प्रेज गॉड। And people will be afraid Jesus is coming back, you'll say लोग बोले अरे आपको पता है 2027 में यीशु आ रहा है, आप बोलोगे भाई आज आ जाए। People will say oh 2027 Jesus is coming back, you say मेरा बाप है, जब भी आए बढ़िया है,
जाएंगे, हम उसके साथ रहेंगे। यीशु ने कहा, मैं जाके तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं कि जहां मैं रहता हूं वहां तुम भी मेरे साथ रहो। You'll have confidence and you'll say, He is my Father, let Him come today. Why 2027? Let Him come today. He is my Father. He said He's preparing a place, so where He is, I'll be. अब आप सोचो, एक बच्चा है, उसके पापा ने कहा, वो किसी दूसरे शहर में, बच्चे को पापा ने कहा, बेटा मैं 30 तारीख को आ रहा हूं तुझे लेने। Now imagine there's a child and his father is in another city and मगर he's फिर फोन आता है, नहीं 30 नहीं, एक काम कर बेटा, मैं 8 तारीख को आ रहा हूं। तो बच्चा खुश होगा या बच्चा बुरा मानेगा? तो खुश हो जाओ भाई, जब भी आ रहा है, 27 में आए, 26 में आए, 30 में आए, 40 में आए, हमें पता है जब भी आएगा हमें लेने आ रहा है और हम उसके साथ रहेंगे अनंत तक। So if the father comes sooner than the date he had promised, the child will be happier. So be happy if Jesus is coming today or whatever year. मैं आपको ये कोई अपने कोट्स नहीं दे रहा हूं, वचन दिखा रहा हूं। वचन में क्या लिखा है? अरे लगाओ वचन। Love has been perfect among us in this, that we may have boldness in the day of judgment. Why will we be bold in the day of judgment? Because as He is, so are we in this world. इससे प्रेम हमें सिद्ध हुआ है कि न्याय के दिन हमें हियाव हो, क्योंकि जैसा वो है वैसे ही हम भी इस संसार में हैं। जैसा वो है, वो क्या है? वो परमेश्वर का पुत्र है। He is the Son of God. जैसा वो है वैसे ही हम भी हैं। जब यीशु का पुनरुत्थान हुआ तो उसने मरियम को बोला, मरियम मुझे छू मत, क्योंकि मैं अभी पिता के पास नहीं गया हूं, मगर मैं अपने पिता के पास और तुम्हारे पिता के पास, अपने परमेश्वर के पास और तुम्हारे परमेश्वर के पास जा रहा हूं। When He was resurrected, He told Mary, don't touch me because I have not gone to my Father and to your Father yet. जैसा वो है, अगर एलियाना के लिए दरवाजा खुलेगा तो अमाया के लिए भी खुलेगा। अगर यीशु पिता के पास गया, अगर वो पिता यीशु का पिता है, तो वो आज हमारा भी पिता है। जैसा वो है वैसे ही हम भी हैं इस दुनिया में। If the door opens for Jesus, it will open for us. As He is, so are we in this world. Hallelujah. You will have boldness आपके पास साहस to होगा go before your father's throne. अपने पिता के सिंहासन के सामने आने का। कोई मीटिंग चल रही हो मेरी, चाहे वो एली हो, चाहे अमाया हो, चाहे जूडा हो, वो बोल्डली आते हैं, गोदी में बैठ जाते हैं। Even if I'm in a meeting, my children, they boldly come and they sit in my lap. अगर वो आपका पिता है और आप उसके बच्चे हो, it will give you boldness to go before His presence. If He is your father and you're His children, ये आपको साहस देगा उसकी उपस्थिति में आने के लिए। I pray today, let God open your eyes for the glorious gospel. मैं प्रार्थना करता हूँ आज परमेश्वर आपकी आंखें इस महिमा से भरे Let सुसमाचार के लिए खोल दे। every spirit of fear be cast out from you. Let every fear be uprooted that your heavenly Father will deny you. हर एक डर और भय का आत्मा आप में से निकल जाए। हर ये भय कि आपका स्वर्ग पिता आपको इनकार कर देगा, आप में से निकल जाए आज। I pray today you will catch hold of this revelation that you are not just going to heaven, you came from heaven. मैं प्रार्थना करता हूँ ये प्रकाशन आपके अंदर जड़ पकड़ ले कि आप सिर्फ स्वर्ग जा नहीं रहे, बल्कि आप स्वर्ग से उतरे हो, स्वर्ग से जन्मे हो, उससे आए हो। As was the man of dust, so are those who are born of him. As is the heavenly man, so are those who are born of him. जैसा वो मिट्टी का पुरुष था जो मिट्टी से जन्मा, वैसे ही वो जो उससे जन्मे, लेकिन जैसा वो स्वर्गीय पुरुष है वैसे ही वो है जो उससे जन्मे हैं। Amen. अभी एक बात सुनो मेरे ध्यान से, then we'll pray. मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक मुर्गी थी और उसका छोटा चूजा था और एक कोबरा आया, और कोबरा, आप YouTube में देख लेना, YouTube में मिल जाएगा आपको। कोबरा चूजे को खाने जा रहा है। I was seeing there was a hen and it had a chick near him and near the hen and a snake came to eat the chick. Okay? तो बैठ बड़े जल्दी जाते हो आप लोग, बैठे रहो बैठे रहो भाई, हमारा भी साथ दिया करो कभी कभी, हैं? चलो ठीक है, अब सुनो मेरी बात। वो जो मुर्गी थी, जब वो सांप उसके बच्चे को, सोचो मुर्गी कितनी डरपोक, लोग क्या बोलते हैं, आर यू अ चिकन? हम क्या, हाँ कैसे करके मजाक उड़ाते हैं। मुर्गी को किससे बोला जाता है जो डरपोक होता है? आर यू अ चिकन? डोंट बी अ चिकन, डोंट बी अ चिकन।
जो मुर्गी डरपोक होती है, जब सांप उसके बच्चे को देखना है तो मैंने देखा वो मुर्गी पंख करके ऐसे लड़ने जा रही है सांप से। जब एक जानवर अपने बच्चे को डिनाई नहीं कर सकता, तो वो परमेश्वर जो प्रेम है वो कैसे अपने बच्चों को डिनाई कर सकता है? When an animal which is considered a coward would fight for the children, how much more that father will fight for his children and never deny them no matter what. इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, अगर यीशु आपकी आंखों में आंख डाल के एक दिन बोलेगा मैं तुझे नहीं जानता, तो वो झूठा है। That is why I say if Jesus can one day look into your eyes and say I don't know you, I did not know you, he's a liar. आप बोले आप कैसे बोल सकते हो ऐसे? You can say how are you saying like this? परमेश्वर ने मेरी आंखों को सुसमाचार के लिए खोल दिया है। Because God has opened my eyes to his gospel. ओके, जब एक जानवर अपने बच्चों को नहीं त्यागता, जब एक जानवर अपने बच्चों के लिए लड़ने चला जाता है। एक और वीडियो में देख रहा था, और जब भी मैं देखता हूं ना मुझे तो सुसमाचार दिखाई देता है हर जगह। तो मैंने देखा एक हिरन थी और उस हिरन का बच्चा था, और वो हिरन बहुत तेज भाग रही थी मगर बच्चा हल्के भाग रहा था। तो एक चीता आया और चीता उसके बच्चे को आया, तो उस हिरन ने पता है क्या, वो आगे आ गई चीता के और खड़ी हो गई और उसका बच्चा भाग गया। उसने अपना सैक्रिफाइस दे दिया अपने। जब एक जानवर ऐसा कर सकता है, तो जिससे प्रेम उत्पन्न हुआ है, जो परमेश्वर प्रेम है, वो कभी भी आपका इनकार नहीं करेगा। I saw a video where a deer sacrificed itself before a leopard to save its child. When an animal can do that, the God who is love himself will never deny you. कहता है, क्या एक दूध पीते बच्चे को उसकी माँ त्याग सकती है? His word says, can a nursing mother abandon her child? और फिर वो कहता है हाँ, क्योंकि बहुत त्याग देती है। वो कहता है माँ तो त्याग सकती है, मगर मैं तुझे ना कभी त्यागूंगा ना कभी छोड़ूंगा। देख तेरा चित्र मैंने अपने हथेली में बनाया। And he says, yes, a nursing mother may abandon her child, but I will never leave you nor forsake you. I have engraved your picture on the palm of my hand. हालेलुया। आपकी पिक्चर इंस्टाग्राम में हो ना हो, मगर परमेश्वर के बटुए में आपकी पिक्चर है। लोग करते हैं ना, बटुए में उसकी पिक्चर रखते हैं जिससे उन्हें बहुत प्यार होता है। Whether you have your photo on Instagram or not, God has your picture, your photo in his मैं आपको wallet. बता रहा हूँ, परमेश्वर के बटुए में मेरी पिक्चर है। I'm telling you, God's wallet has my photo in it. बुरा मत मानो, आपकी भी है। Don't feel bad, he has your उसका photo बटुआ also. बहुत बड़ा है। His wallet is very big. आमीन। कितना महान हमारा परमेश्वर पिता है। What an amazing, what a कितना mighty God we महान serve. प्रेम उसने किया है, और शैतान ने क्या कर दिया हमें, फिर दूसरा धर्म बना दिया इसको। And what the devil has done is he has made फिर this इसको another दूसरा धर्म बना religion. दिया Made it another religion. कि करते रहो आखिरी दिन तक। हो सकता है यीशु दया करे, हो सकता है यीशु इनकार कर दे। Keep doing till the last day. Maybe Jesus will deny you. Maybe he'll have mercy. अरे धर्म नहीं है भैया। This is not religion. क्या बोला यीशु ने निकोदेमस से, जब तक तुम नए सिरे से जन्म ना लो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। यानी जब नए सिरे से जन्म ले लिया तो तुम स्वर्ग के नागरिक हो। Jesus said, until you are born again, you cannot see the kingdom of heaven. And when you are you're born again, you are a citizen of that kingdom. डू यू नो गॉस्पेल का सेंट्रल पॉइंट जब आप पढ़ोगे पूरा सुसमाचार, स्वर्ग नहीं है, The central point of the gospel is not heaven. यीशु मसीह है। Jesus is the center. भीड़ रेवलेशन मैंने कही थी, ओ वाह क्या बढ़िया सोना है, 24 कैरेट है या 18 है, वाह। भीड़ उसके पास नहीं थी, भीड़ सिंहासन के चारों ओर थी, पिता के चारों ओर थी, सोने के चारों ओर नहीं थी। The crowd in heaven was not around the golden streets, but it was around the Father. हाँ, लोग बोलते हैं अरे, और मैं उसके विरोध में नहीं हूं, प्लीज मेरे हार्ट, अरे वहां तो बड़े बड़े मैंशन है और मोतियों का दरवाजा है। अरे खेत में भी सोएंगे ना हम, पिता वहां है तो वो People say there were big mansions in अगर heaven. पिता pearly हमारे gates. बगल में है, हरी चराइयों में खुले में सोएंगे, वो हमारा धन है, वो हमारा प्रतिफल है। He is our treasure, our reward. आमीन। और समय है पृथ्वी में जब आप उसको जान सकते हो, वहां तो जानोगे ही। And there's time on the earth when you can know him. You will know him there as well. मगर जितना मैच्योर आप पृथ्वी में होगे, उतना मैच्योर आप स्वर्ग में प्रवेश करोगे। But the more mature you are here on the earth, that's how you will enter heaven.
आमेन। और जो लोग पृथ्वी पे इमेच्योर होते हैं, जो आत्मिक परिपक्व नहीं होते, जब वो परमेश्वर को देखते हैं तो वो केवल एक लाइट देखते हैं। The people that are not चलो, आई एम नॉट गोइंग देयर। जब पौलुस ने पहली बार यीशु को देखा तो केवल लाइट देखी। When Paul saw Jesus the first time, he only saw जब light. आगे आत्मा में बढ़ गया तो यीशु को पूरा देखा। When he grew in the spirit, he saw Jesus. सो अभी समय है परिपक्व होने का, स्वर्ग के लिए नहीं। स्वर्ग तो ऑटोमेटिक है, वो तो जाना ही है, वहां तो घर है आपका, जाओगे ही। So this is time to be mature, not to go to heaven. That is your house. You will go there. सोचो एक पत्नी है, वो बहुत समय से वापस अब घर जा रही है, वो कहे हाय मेरा बंगला, हाय मार्बल की सीढ़ियां, हाय मेरा डाइनिंग टेबल। तो लोग कहेंगे भाई पति से प्यार करती है या बंगले से ही प्यार करती है? पति के लिए तूने एक बार नहीं बोला हाय पति, तो ऐसे हाय स्वर्ग जाएंगे। क्या आप स्वर्ग जाओगे? अबे चुप कर, हम पिता के पास जाएंगे। We are going back to the Father. Amen. कहाँ जाएंगे? Where are we going? पिता के पास। Back to the यीशु Father. ने कहा बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं जा सकता। Jesus said, "Without me, no one can go to the Father." हालेलुया। कितना महान प्रेम। ओके, पुट जॉन, ओके लेट मी जस्ट चेक। ओके, हालेलुया हालेलुया। 1 जॉन 3:1। पहला यूहन्ना 3 उसका 1 और 2। तैयार हो आप? ओके, केवल स्क्रिप्चर्स पढ़ोगे, केवल सब उसी में है। देखो, केवल पढ़ते हैं। Behold what manner of love the Father has bestowed on us that we should be called children of God. Therefore the world does not know us because it did not know him. देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। संसार आपको कैसे देखता है? अरे ये चोपड़ा जी हैं, ये मिश्रा जी आ रहे, उन्हें पता ही नहीं मिश्रा जी के अंदर परमेश्वर का पुत्र है। संसार अभी हमें नहीं जानता क्योंकि संसार ने उसको भी नहीं जाना। इसीलिए नहीं जानता कि इस मिट्टी के अंदर परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर का बेटा, परमेश्वर की बेटी है। The world doesn't know us because the world did not know him. They don't know within this body is the son and the daughter of God. Amen. अब आपकी असली आइडेंटिटी आपका शरीर नहीं, क्योंकि आप शारीरिक नहीं। आपकी असली आइडेंटिटी आपकी आत्मा है, क्योंकि आप आत्मिक हो। Now your real identity is not from your body but from your spirit. You are spirit. कि शरीर नहीं देखना अपने आप को। ये जीवन है मिट्टी का पुतला, अरे पुतले को बदलने यीशु है आया। ओके, नेक्स्ट वर्स 2। Beloved, now we are children of God. कब हैं हम? बनेंगे नहीं, हैं, अभी हैं। प्रियो, अभी हम परमेश्वर के साथ। Now we are children of God and it has not yet been revealed what we shall be. हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं और अब तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। क्या कुछ होगे आप, अभी आपको पता ही नहीं है आप क्या कुछ होने वाले हो। हमें लगेगा हम बस स्वर्ग जाएंगे और फिर वहां देखिए बोले 24 कैरेट सोना। अरे अभी आपको पता ही नहीं है भाई आपके साथ क्या क्या होने वाला है। You have no clue what is पौलुस going to कहता happen to you. है जो ये क्षण भर के दुख और कलेश हैं कुछ भी नहीं है उस महिमा के सामने जो हम में प्रकट होने वाली है। Paul says these momentary sorrows are nothing before the glory that is going to manifest in us. हालेलुया। अगर आपको एक स्नैपशॉट दूं मैं छोटा सा, If I give you a brief snapshot, जो बड़ा भाई है वही छोटे भाई के साथ भी वही होगा जो बड़े के साथ हुआ। whatever happened to the elder will happen to the younger. जब बड़ा एक पर्वत में था, When the elder was on a mountain, तो बाइबल कहती है वो ऐसे चमकने लगा कि पृथ्वी में कोई धोबी उस कपड़े को इतना वाइट ना कर सका। Jesus was glorified. the Bible says he began to shine with bright light. यीशु महिमान्वित हुआ। ये दुख और कलेश कुछ भी नहीं उस महिमा के सामने जो हमें प्रकट।
every believer shall be glorified. हर एक विश्वासी महिमान्वित होगा। बाइबल कहती है वो ऐसे चमक रहा था जैसे सूरज अपनी पूरी चरम में जो चमकता है, अरे वैसे चमकोगे आप, क्योंकि आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो। The Bible says he was shining as though sun shining in its full power. This is how you are going to shine, sons and daughters of God. Okay, now hear this. But we know that when he is revealed, इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा we shall be like him. तो हम भी उसके समान होंगे। जब वो वापस आएगा भाई, तो जैसा वो है वैसे ही हो जाओगे। When he comes back, you will be exactly as he is. आपको बोला गया जब वो आएगा तो आपको बोलेगा, हैं कौन कौन You- तू कौन है भाई? You were told when he comes back, he will say, "Who are you? I don't know you. Who are you?" कि वचन क्या कह रहा है? What is the word saying? जब वो आएगा, जब वो प्रकट होगा, तो जैसा वो है, वो अविनाशी है, मृत्युंजय है, मर नहीं सकता, जैसा वो है वैसे ही हम भी होंगे। The Bible says when he comes back as he is eternal. So will you be. You will be like him. तो अब हमें डरना चाहिए कि यीशु वापस आ रहा है या डांस करना चाहिए? So should we be afraid that Jesus is coming back, or should we rejoice and dance? क्योंकि जब वो आएगा, जैसा मैं असली हूं, जैसे आप असली हो, दुनिया देखेगी। Because when he comes as you and I really are, the world will see it. देखो क्या लिखा है, और जब वह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, When he is revealed, we shall be like him. क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। For we shall see him as he is. Oh man, the gospel is so glorious. सुसमाचार इतना महिमा से भरा हुआ है। जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे, we have been born from a different source. Unless one is born again, हम एक अलग स्रोत से पैदा हुए हैं। जब निचले पुरुष से पैदा हुए तो निचली चीजें करते थे, निचली चीजों के पीछे थे। जब स्वर्गीय पुरुष से पैदा हुए तो अपने आप स्वर्ग हमारे जीवन से प्रकट होने लगा। When we were born from the lowly man, the lower man, we did things that were lowly. But now that we are born from the heavenly man, automatically those things start to manifest from us which are heavenly. Amen. एक बात मैं आज आपको बताना चाहता हूं, कभी भी पिता के प्रेम के ऊपर डाउट मत करना। Never ever doubt the love of the Father. अगर मुश्किल परिस्थिति में हो, If you are in a कभी difficult भी डाउट situation, मत करना कि पिता मुझसे प्यार नहीं करता, वरना मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। यही शैतान चाहता है कि आपके अंदर ये डाउट डाले कि आप डाउट करो कि पिता एक अच्छा पिता है। never doubt the love of the Father. If you are in a difficult situation, never doubt if the Father loves me. Why is this happening? The devil wants you to doubt his love. ये दुख और कलेश, ये क्षण भर के, पौलुस कहता है क्षण भर के। These दुख और sorrows- कलेश कब है? क्षण भर के। महिमा कब की है? अनंत की। These sorrows are momentary, but the glory is eternal. बुरी परिस्थिति में जा रहे हो, क्षण भर के दुख और कलेश हैं। कैसे हैं? क्षण भर के। डोंट मेक एन इटर्नल पर्सपेक्टिव ऑफ गॉड विद योर मोमेंटरी सर्कमस्टांसेस। परमेश्वर की छवि जो अनंत की छवि है उसको खराब मत करो क्षण भर के दुखों के कारण। जिस भी चीज से आप गुजर रहे हो, बाइबल कहती है ये दुख और कलेश क्षण भर के हैं और कुछ भी नहीं उस महिमा के सामने जो हम में प्रकट होने वाली है। Whatever you are going through is momentary and it is nothing before the glory that is going to manifest in us. I want to tell you, मैं आपको बताना चाहता हूँ difficult times are going to pass very soon. कठिन समय बड़ी तेजी से गुजर जाएंगे। Amen. As God has said, this month shall be the month of supernatural turnaround in the name of Jesus. जैसा परमेश्वर ने कहा है ये महीना सुपरनैचुरल टर्न अराउंड का महीना होगा आपकी जिंदगी में यीशु के नाम में। Your health is supernaturally turning around for His glory. आपका स्वास्थ्य सुपरनैचुरली टर्न अराउंड हो रहा है उसकी महिमा के Your लिए। finances are supernaturally turning around for His glory. आपका पैसा सुपरनैचुरली टर्न अराउंड हो रहा है उसकी महिमा के लिए। Amen.
you are gonna encounter the God of suddenlies in the name of Jesus. आप उस अचानक के परमेश्वर का सामना करने वाले हो यीशु के नाम में।